Good afternoon, everyone. Right, we are starting with this VB curve method. Right, VB curve method में अभी तक जो हम लोगों ने किया था, right, या how to change the sign and basic questions जो थे उस पर हम लोगों ने बात की थी and कुछ हमने powers भी इसमें working किए थे. So this is VB curve method, right? इस VB curve method में first you know each and every terminology जो हम लोगों ने use किया था and value of 1/0, right? जितने भी टर्मोलॉजी मेरे पास हैं याद होगा सभी को. मैं जल्दी से एक बार ब्रीफ करते हुए आगे जा रहा हूँ. राइट, इसमें कहीं पर किसी को कोई डाउट या डिस्कशन करने की जरूरत होगी, प्लीज राइट इट डाउन ना. आई विल स्टार्ट विद दैट ओनली. राइट, नो प्रॉब्लम विद दिस. ओपन ब्रैकेट को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल. राइट, इट्स ऑफ द ओपन ब्रैकेट. ओपन ब्रैकेट होने का साफ मतलब है कि व्हाट यू हैव टू ईट इनसाइड द, like what is given is that's inside the ice cream, only you have to eat the ice cream, right? So it's an open bracket, right? You will not eat this dabba, right? And the closed bracket, obviously the whole ice cream you have to eat. That's called the closed bracket. Agar main 2 to 5 likh raha hu to you have to include 2 as well as 5, right? So number line inequalities ke all you know, right? प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से. वी हैव ऑलरेडी डिड दिस, राइट. योर आंसर्स इंटरवल्स जो आने थे ना, एवरीवन नो दिस इंटरवल, राइट. हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था. नाउ फ्यू चैलेंज फॉर यू, राइट. तो चैलेंज क्वेश्चन जो परफेक्शन लाने की बात थी, चैलेंज क्वेश्चन थे. तो लाइक यू नो दिस ऑलरेडी वी डिड, राइट. A smile for you. Check yourself. Right. Once more, you are going for that. Right. Again, the number line. I guess everyone knows this, how to solve. Right. Now, again, your answers. And this numerator and denominator greater than equal to 0. We know that usually this minus infinity to 1, 3/2 to infinity, just you have to check whether this is positive or negative. You are putting any value greater than 3/2, so you are getting greater than 0. Main thing is the open bracket and closed bracket. Open bracket for any 1/0 number, that must be open bracket. For any 3/2, this will be 0, so this is closed bracket. Positive, negative, positive. Now number line. So you have to write down the answer. For positive, we know that minus infinity to 1 union 3/2 to infinity, right? Next. थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया उस चीज को, राइट. कुछ नंबर्स और हमने रख दिए. minus infinity 1, -1, 3/2, 10, right? Positive, negative. Obviously, we required positive part, only positive part, so everything is 0, right? Not included, even 3/2 also, right? So minus infinity to -1 union 1 to 3/2 union 10 to infinity. I guess ये भी हम लोगों ने किया हुआ था. Everyone is comfortable with that, right? And अगर पावर आ जाए, इवन पावर एंड ऑड पावर, ऑल यू नो. इवन एंड ऑड पावर के लिए जो भी मेरे पास इवन पावर्स हैं, हमें उसे 2 बार लिखने होंगे. ऑड पावर को वी हैव रिप्रेजेंट 1 टाइम्स ओनली. एंड स्टेप्स उसके लिए मैंने लिखवाया हुआ था. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो भी है उसको 0 करो. ओपन एंड क्लोज आपको ख्याल पे रखने हैं. तो दिस एट 3 and 7 it's open, but 4 पर 2 पर -1 पर this is closed, right? And now we have to see कि कहाँ पर मेरे पास maximum -1 2 बार आ रहे हैं, right? 3 मेरे पास 2 बार आ रहा है, right? 4 मेरे पास 2 बार आ रहे हैं.
Now you are able to write down this, the positive negative part. राइट जो भी दो बार आ रहे थे उसको हमने पहले पॉजिटिव से स्टार्ट किया, नेगेटिव गए, ये यहाँ से फिर यहाँ चला गया. लुक, सेम आंसर यू आर गेटिंग विद दैट. ओके, नाउ सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू जिससे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली यू नो दिस कि यहाँ पर जो नंबर लाइन मेरे पास गिवन है उसमें राइट this is 1 2 times and 3 1 time, right? And everything must be open, right? From infinity you are starting from infinity, a large number, very large number greater than 3, right? But it will start with negative. See why it is starting from negative, right? If you'll put any value greater than 3, look, this is 3 minus x, this will be negative. And जो हमारे पास x minus 1 given है and x minus 2 whole square, all the number will be positive. So any value greater than 3 will be negative. So started with negative. At 2, this will repeated 2 times, so equal to 0. But everything will be open. That's the reason you are getting this. So what we require, the positive part. So you can write 1 2 3 negation 2 with curly bracket. याद होगा, सही है. Second question is 5 by 6 and minus 1 by 4 and 5 by 6, right? Minus 1 by 4 and 5 by 6. Any value greater than 5 by 6, 100. It will start with positive, negative, positive, and both are open in this again, right? So you know how to do and what to do. Is it okay? राइट तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास तक किए थे एंड मेनली इस पर बेस हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए थे, राइट. बट मेन हम लोग यहाँ पर जो स्टार्टिंग लेनी है वो स्टार्ट हमें लेनी है विथ क्वाड्रेटिक, राइट. अगर क्वाड्रेटिक मेरे पास आ रहा है, बड़े से बाई क्वाड्रेटिक मेरे पास आ रहे हैं, क्यूबिक मेरे पास आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इज अ सिंबॉलिक, राइट. हो सकता है क्वाड्रेटिक के जगह पर आपके पास क्यूबिक आ रहा हो सकता है इसके जगह पर बाई क्वाड्रेटिक आ रहा हो, राइट. ये कोई भी फंक्शन मेरे पास इस तरह के आ रहे हो तो हाउ टू, राइट. मेनली हम लोग को क्वाड्रेटिक में हमें ये पता करना होता है एग्जैक्टली उसके रूट्स जो हैं वो आ रहे हैं या नहीं. अगर रूट्स आ रहे हैं तो वो किस तरह से हमारे लिए वर्क करेंगे. बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज होता है, थोड़ा पेशेंस के साथ देखने वाली चीज है. तो ऑब्वियस बात है कि मैं मतलब इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि एवरीवन हैज टू गेट लाइक तुरंत के तुरंत आ जाए. पेशेंसली वी हैव टू डू, राइट. जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ पर हम लोग डिस्कस भी करते जाएंगे. तो वी हैव टू स्टार्ट विद दिस, राइट. थोड़ा यू हैव टू बी पेशेंस, राइट. द स्टेप फर्स्ट, सबसे पहली बात तो यही रहेगी किसी भी इस तरह के क्वेश्चन के लिए, इफ यू आर एबल टू फैक्टराइज इट, डू इट. सीधा का सीधा फैक्टराइज हो रहा हो तो फैक्टराइज कर दो. बहुत सारे क्वाड्रेटिक होते हैं जो डायरेक्टली फैक्टराइज हो जाते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 x माइनस 1 x माइनस 2, राइट. इटन ओके, right, x minus 1 x minus 2, few quadratics are there. You are not able to factorize this, right. You are not able to factorize this, and then you have to take help of the basic formula of quadratic. X is equal to minus b plus minus root d by 2a, right. So you have to use that quadratic key. If you have to solve or you have to get the values, वो values आप कैसा लाओगे, right. अगर ये हो जाता है काम खत्म, राइट. अगर फैक्टराइज हो गया, एंड एज आई वाज सेइंग कि अगर फैक्टराइज ना हो रहा हो, राइट. अगर फैक्टराइज ना हो रहा हो तब क्या करें, राइट. सो दैट टाइम यू हैव टू यूज द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a. अगर ये फॉर्मूला यूज हो जाता है, यहाँ काम बन जाता है, इट्स वेरी गुड. अपने आप में काम बन गया, काम खत्म हो गया, right. But if
इफ ये दोनों ही केसेस मेरे पास वर्क नहीं कर रहे हों, दोनों ही केसेस मेरे पास वर्क नहीं कर रहे हों, मे बी पॉसिबल हो कि यू आर नॉट getting factorization and you are not able to use the formula, right? Use the formula means if this d is coming as negative, ये जो discriminant जो आ रहा होगा वो negative आ जाए. अगर d less than 0 आ रहा होगा, then you have to be very much you have to be like precautions, you have to take precautions in that case, right? Just see. So अब ये 3 स्टेप हमारे पास हैं. फर्स्ट स्टेप, सबसे अच्छा स्टेप आपके पास यही है कि फैक्टराइज हो जाए, काम खत्म हो. अब फैक्टराइज नहीं हो रहा, ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर द सेकंड वन. सेकंड स्टेप में मेरे को करने क्या है कि एक्स की वैल्यूज मैंने निकालने हैं और वहां पुट करने में पूरी की पूरी बात समझाऊंगा, राइट? एंड थर्ड स्टेप जो मेरे पास है, वहां पर वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि वहां पर अगर कुछ गड़बड़ हो रहे हैं, राइट, कुछ गड़बड़ हो रहे हैं, तो हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहे हैं वो लेस देन 0 अगर आ रहे होंगे तो उसे कैसे डील करना है. ये 3 चीजें हैं जिनको हम लोगों को डील करना होगा, राइट? अब ये डील करना कैसे होगा वो अभी दिखाता हूं मैं आप लोगों को, राइट? इसे डील करने का तरीका क्या रहेगा एंड हाउ टू गेट दिस, राइट? सो फर्स्ट इज द फैक्टराइजेशन. जब फैक्टराइज हो जा रहे हो तब की बात करूं तो फैक्टराइज हो जा रहे हो लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट? सेकेंड एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, थर्ड एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48, एनीथिंग लाइक दिस, राइट? तो आई गेस एवरीवन नोज दिस. इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. I hope कि everyone is getting this, right? How to factorize this? You have to take two numbers, the sum will be 5 and product will be 6. You have to take two numbers, sum will be 7 and product will be 10. You have to take two numbers, sum will be 16 and product will be, right? Maybe you'll get something in that form, right? Root 2 plus root 3x plus root 6. The sum will be root 2 plus root 3 and the product will be root 6, right? So in any form, if you are getting this, I hope everyone knows how to get the answer. If yes, write down yes. No problem with this, then write down yes, then I'll move. Everyone. Okay. Anyone? No. See. So in the second step, it's saying that x square, 2x square minus 3x minus 4, right, is equal to 0, or this is given in the factors. Second, x square minus 5x plus 1, right? Third, 3x square minus 6x plus 4, yeah, 16x, मैंने कुछ भी लिख दिया, right? कि ये सब ऐसे नंबर्स हैं जहां पर वी आर नॉट एबल टू डू द फैक्टराइजेशन, राइट? इन दैट केस व्हाट आई एम सेइंग, use the basic formula for quadratic, and it was ax square plus bx plus c is equal to 0 given, then value of x will be minus b plus minus under root d by 2a, where d is nothing but b square minus 4ac. अंडर रूट नहीं होता, ख्याल रखना. It's d is equal to b square minus 4ac. Now you have to put the values. For first case, you are saying a is equal to 2, b is equal to minus 3 and c is equal to minus 4, right? Put the value x is equal to minus b plus minus under root b square minus minus plus 4 into 2 into 4 by 2a, 3 plus minus 51 by 4, राइट? जो भी नंबर्स आ गए, अब करना क्या है, अगर मुझे नंबर लाइन में दे रखने हैं, मैंने ये नंबर लाइन बनाया और इसमें ये दोनों पॉइंट्स या दोनों वैल्यूज जो मेरे पास है वो मैं पुट कर दूंगा,
राइट। अब ओपन है, क्लोज है, क्या है, वो बात की बात है। मैं तो पहले केवल यहाँ पर जो बताना चाह रहा हूँ, सिखाना आपको चाह रहा हूँ, ये है कि ये जो इस तरह की वैल्यूज मेरे पास जो आ रहे हैं, राइट, उससे आप कैसे डील करोगे अगर आपके पास इर्रेशनलिटी वगैरह आती है तो। व्हाट यू हैव टू डू इज एवरीवन गेटिंग दिस? नोट डाउन प्लीज। एंड फर्स्ट का मैंने निकाल दिया है, सेकंड एंड थर्ड का आप खुद से निकालो एंड डू इट फास्ट। Naman, want to ask anything? It's okay, everyone? Done. X square minus 5x plus 1. Right? X is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a is 1. Right? X is equal to 5 plus minus root 21 by 2. In the number line, again, you can put 5 minus root 21 by 2, 5 plus root 21 by 2. Approximately, you know that root 21 is 4 point something, right? So 5 minus 4 point something, this is a positive value greater than 0. ये थोड़ा सा manipulation में ख्याल रखना, like, right? थोड़े से manipulation में ख्याल रखना. Okay, is it okay? Yes, sir. Right. Third, it is given 3x square minus 16x plus 4. Minus 16x plus 4 is equal to 0. Right. So obviously, x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 16 into 3 by 2 into 6. X is equal to 16 plus minus under root of 16. I'm taking common out 16. So this is coming as 12 by 6. Right. So you are able to just calculate. 2 will be common from this. So 8 plus minus 2 into 2, 4 root 3. Whole thing divided by 3. Something like this. If irrational roots are there, you are able to get the roots, and इतनी बड़ी बात होगी नहीं, आसानी से we can find the roots. ना roots जहाँ भी हमारे पास आते गए, तो now you have to solve the roots को solve करने हैं, right? Case third. इसमें जो केस था, अगर फर्स्ट केस हमारे पास अप्लाई हुआ, फैक्टराइज हुआ, वेरी गुड. सेकंड केस हमने रखा कि फैक्टराइज नहीं हो रहा है, बट वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इट्स मार्वलस. But the best one, if we are not able to find the roots are not real roots नहीं होके कोई imaginary roots की बात हो रही हो, तब क्या करें? जैसे ये ऐसा नंबर मेरे इनइक्वलिटीज में है, क्या करूं, कैसे डील करूं? One of the simplest but important one. X is equal to minus b plus minus under root minus 3 by 2a. अब ये मेरे पास जो आया माइनस बी प्लस माइनस 2a में एक मेरे पास नंबर आया, वो नंबर आ गया अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन. अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आने का मतलब है कि ये मेरा रियल नंबर नहीं है, इट्स नॉट रियल. इसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, एंड इसे आयोटा से आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं. आयोटा इज अ ग्रीक वर्ड, राइट? आयोटा का मतलब होता है इमेजिनरी. कभी कभी इंग्लिश में भी हम लोग यूज करते हैं, लाइक आयोटा नॉलेज, आयोटा स्पेस, राइट? इस तरह से, मतलब इट्स नथिंग देयर, राइट? कि कुछ भी नहीं है, बट फिर भी समवन इज स्पीकिंग अबाउट दैट.
तो आयोटा नॉलेज या इस तरह से यूज करते हैं, कुछ भी जगह नहीं है बट फिर भी आ जाता आयोटा स्पेस, राइट। मतलब और हम लोगों ने ये जो नंबर लाइन अपना बनाया हुआ है, वो नंबर लाइन हमने जो बनाया हुआ है वो है मेरा रियल नंबर का। अब इस रियल नंबर में इसका कोई काम ही नहीं है, ये होगा नहीं पुट, मतलब ये कब जीरो हो रहा है तो मैं इसे जीरो कर ही नहीं पाऊंगा। इस नंबर लाइन जो हमारे पास जो नंबर लाइन है ना, उसमें हम लोग इसे कभी जीरो नहीं कर पाएंगे। याद होगा मैंने उसके बारे में बताया भी था, साइंटिस्ट के बारे में, आर्गन प्लेन के बारे में मैंने बोला था पूरा, एक बार उसके बारे में भी बात करेंगे, वो बात की बात है, राइट। तो अब इस नंबर लाइन में ये कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब या तो ये हमेशा पॉजिटिव है या ये हमेशा नेगेटिव है। अब हमारे पास दो ही चीज आ रही है, या तो ये हमेशा और हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है। अब मुझे ये डिसाइड करना है क्या ये हमेशा पॉजिटिव है या क्या ये हमेशा नेगेटिव है, राइट। आपको क्या लगता है ये ऑलवेज पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो उसको डिसाइड करने का सबसे अच्छा तरीका है आप कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो जो आपको सबसे पसंद हो, सिंपल वाली वो वैल्यू पुट कर लो, आपको पता चल जाएगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दिखेगा, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव दिखेगा। तो अगर मैंने इसमें 0 पुट किया तो ध्यान दो ये 1 आ रहा है। 1 आने का मतलब है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये नहीं है, राइट। तो नंबर लाइन में हम क्या करेंगे, इसे सीधा डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब इसे सोचेंगे ही नहीं, मेरे क्वेश्चन में गिवन था, इसे सीधा काट के अलग कर देंगे, जो बचा हुआ ऑप्शन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो तब क्या करेंगे, इसे डिस्कार्ड करते हुए एक उस क्वेश्चन में माइनस साइन मैं पुट कर दूंगा। जैसे ये डिस्कार्ड होगा पूरे क्वेश्चन के आगे में मैं माइनस साइन लगा दूंगा। जैसे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यही था अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। मान लो मैंने ये कहा होता, मैंने ये कहा क्योंकि मुझे ये पता है कि ये नो रियल रूट्स है, इसे डिस्कार्ड कर दिया एंड हमारे पास, मैं सोचूंगा मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है 2 and 3, 2 के आगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ओपन ओपन, थोड़ा सा लहराता हुआ एक प्यारा सा साइन स्केल बना दिया, राइट। माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 to infinity. Is it okay? Right? लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाता, सॉरी माइनस 1 हो जाता, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 6 लेस देन या चलो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गिवन रहता, राइट। अगर ये केस मेरे पास रहता तब मैं यहाँ पर जब इसे मैं देख लिया इसका d जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, इसे हटाने के लिए मेरे को दिक्कत होगी क्योंकि मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो ये मेरा नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो वो टाइम से ही कि मैं रीराइट करके क्वेश्चन को लिखूंगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दो बातें हैं, या तो नेगेटिव को हटाऊंगा तो इनइक्विटी साइन चेंज कर दूं, नेगेटिव को हटाऊंगा तो इनइक्विटी साइन चेंज कर दूं, या पूरा रहने दूं नेगेटिव से मैं नंबर लाइन स्टार्ट करूं। अब जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो अब यहाँ पर गया माइनस 1 प्लस 1 6 के आगे की वैल्यूज के लिए नेगेटिव पॉजिटिव, फिर एक प्यारा सा लहराता हुआ नेगेटिव से शुरू होगा पॉजिटिव से होता हुआ ये चल, मुझे जो चाहिए आंसर लिख किया। होपफुली एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट। क्या यहाँ पर क्वाड्रेटिक के लिए व्हाट यू हैव टू डू, राइट डाउन यस इफ इट्स क्लियर। Anyone want to ask anything? No? So, अब बात इस पर आ गई कि आपको जो क्वेश्चंस थे या जो क्वेश्चन में दिक्कत हुई, थोड़ी सी उसकी बात करूं कि उसमें क्या दिक्कत आ गई और कैसे उसको सॉल्व होने थे, राइट। क्योंकि क्वाड्रेटिक की ये फंडा थे, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं थोड़ा सा पहले मैं जो क्वेश्चंस मैं करवाना चाहता हूं वो करवाता हूं, फिर आपको जो वर्क दिया था उस पर मैं साथ ही साथ चलता हूँ, राइट। सो राइट, यहाँ पर हम थे
like first factorize if possible ना. Step 1 not satisfied, factorize नहीं हो रहा है, what you have to do. Step 2, right? And अगर सबको समझ में आ गया हो तो मैं बोल सकता हूँ कि now you are happy. Okay? Yes, sir. ठीक, आगे बढ़ता हूँ फिर. Now this is the question. ये क्वेश्चन में I need ये अब फोर्थ एंड फिफ्थ, ये दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हो जल्दी से. डू इट फास्ट. फर्स्ट को छोड़ देते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ आप लोग सॉल्व करोगे थोड़ा फास्ट. एंड होते जाए, रेज योर हैंड प्लीज और राइट डाउन द आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड. अनुष्का वेरी गुड, उदय वेरी गुड, हरिप्रिया वेरी गुड, अन्य वेरी गुड, अनिस वेरी गुड, इट इज वेरी गुड. विनीत ध्यान से, ध्यान से. You have to be happy. Vaishnavi, you want to ask anything? No, sir. Okay. आप फर्स्ट रहने देते हैं ना, फोर्थ एंड फिफ्थ की ही बात करता हूँ. राइट, फोर्थ में व्हाट आई एम सेइंग कि अगेन दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. जो एग्जांपल मैं दे रहा था वही है. माइनस साइन एक आएगा, या तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. राइट, and that must be greater than 0, and I know कि this is always greater than 0, तो answer is R. Right, x belongs to R, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कुछ भी आंसर आपके पास लिखा जा सकता है. जो मन हो x को आप रख दीजिए, हर एक वैल्यूज x की है वो सेटिस्फाई करेगी. सिमिलर इन सेकंड क्वेश्चन, सी दिस इज 2 and 3 ना, ओपन है ये तो है ही. राइट, नीचे की क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे सीधा हटाने के बाद मेरे को क्वेश्चन केवल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0 की बात करनी है. राइट, पहले तो ये साइन स्केल मैंने बना ही दिया. राइट, एनी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, व्हाट वी रिक्वायर्ड द नेगेटिव पोर्शन, मतलब ये वाले पोर्शन है, मींस 2 to 3 की बात कर रहा हूँ, बिटवीन 2 to 3. आई गेस सभी का सही होना चाहिए. राइट, आंसर. राइट, एक राइट थॉटफुल आ गया कि भाई सभी को क्लियर है ना. Again, 3 for you. This time more careful.
Not bad. Very good. नंबर जरूर चेक कर लेना where you are getting this right. It's okay. So let's start. Fast, fast. Start with the first one, right? So this is x square, right? So we can factorize this x minus 1 into x plus 3. नीचे की जो quantity फिर x square plus 1, this must not be equal to 0. ये तो हमेशा positive है and इसे less than 0 होने हैं, right? And this will be 0 at minus 3 and 1. और ये less than 0 होगा तो minus 3 से 1 के बीच की values आ रही है. So first answer will be minus 3 to 1, right? Second, obviously the square thing is there, right? तो minus 2 मैंने 2 बार repeat किया, 1 जो मेरे पास था वो रहने दिया, minus 1 रहने दिया मैंने, right? Starting with positive, positive and going up, right? And this is less than 0 and we need the positive part. केवल ये ख्याल रखने हैं कि -2 पर it's not coming. आंसर लिखने के कई different तरीके हो सकते थे, -infinity to -1, यूनियन 1 to infinity, डिस्कार्ड कर देता मैं -2, राइट? कई तरीके से आप लिख सकते हो, राइट? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सीधा 8th वन, राइट? फर्स्ट दिस इज अ कंप्लीट स्क्वायर ना, कंप्लीट स्क्वायर के लिए हम लोगों ने 2 बार लिख दिया, सिंस वी नो दैट कि यहाँ पर रूट्स अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे, राइट? उसके बाद दिस विल बी फैक्टराइज इन द फॉर्म ऑफ 2x + 1 एंड x - 1, दोनों वैल्यूज मेरे पास है. Any value greater than 1, start with positive, negative, positive, then again positive. We required again this answer, or you can write -infinity to -half, union 1 to infinity, discard the value -2, right? Discard the value -2. तो किसी भी तरीके से you can go in that way, right? अब ये greater than 0 है या less than 0 है, इस पर डिपेंड करेगा what you have to do, right? So how many of you got all 3 correct? Please write down. 3, 2, 1. Start. Yes, we are done. You want to ask anything? No, sir. Jewel. Okay, sign mistake. No problem now. Done. किसी को कुछ पूछना चाहेंगे? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? Next. Right. So this is the concept. I hope you understand this कि quadratic के form अगर whole square के form में मैं दिए हों या different form में, how to handle this now. अब ये कंसेप्ट में मैंने कहा जैसे बाई क्वाड्रेटिक मेरे पास आ जाते हैं तो नॉट अ बिग डील, ये भी कोई बड़ी बात नहीं रहेगी. तो बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए भी यू हैव मेथड, राइट? वैसा ही करना है जैसे पहले से आप कर रहे थे. एक क्वाड्रेटिक आपके पास है, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने हैं हमें, और वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके जिस तरह से आपको चलने होते हैं, फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज, जो 3 मेथड बताए हैं वहीं से वर्क करने हैं, राइट? तो डू इट फास्ट, उसके बाद डिस्कस करते हैं ना.
Very good. Very good. मैं शुरू करूं? Okay. Hope everyone did that the same way. Okay, start, right? First one. Obviously, when you'll factorize, you'll get x square minus 4, x square minus 1, or again factorization, you are getting plus minus 2 plus minus this, these four values, right? You have to put any value greater than this, positive, negative, positive, negative, positive. What we required, right? Negative part. So this is the negative part, this is the negative part. Minus 2 to minus 1, 1 to 2. This would be the answer. सिमिलरली इन द सेकेंड वे, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन एक फंसता है, एक इसमें फैक्टर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 7. फर्स्ट इज द फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 7, राइट? एक्स स्क्वायर प्लस 7 is equal to 0. This will not give you any real number. This must be imaginary. So this must not be equal to 0, and we know that for any value this will be always positive. So only I have to solve x square minus 9 less than equal to 0, right? 0 is not required here, so answer is not this one, right? Answer is minus 3 plus 3 only, between minus 3 to plus 3. And it's open or closed, so you have to see this. This is closed. This is wrong one. Okay, how many of you got the right answer? Write down fast. Chinmay, very good. Anushka, Ska, Dharmil, Tanis, Areva. Now, so now, happy, right? But अब ये क्वाड्रेटिक की तो बात हो गई कि लाइक हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक में ये तीन बातें आएंगी, या बाई क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक भी होगा, तो यू कैन फैक्टराइज दैट, और दोनों फैक्टराइजेशन में यू कैन सी कितने रियल रूट्स आ रहे हैं, राइट? अगर तीनों रूट्स आ रहे हैं तो तीनों रूट्स हम निकालिए, और कोई दूसरे मेथड्स पे हम लोग को जाने की जरूरत नहीं होती. बट अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उसपे हमने क्या किया कि हमने जीरो से कंपेयर किया, ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो. तो पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो ही करने पड़ेंगे, कोई नंबर 1 2 के लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं, राइट? बट अगर अब मुझे यहाँ से बढ़ना होगा तो वी नो दैट कि अगर मेरे पास गिवन है दिस नंबर इज लेस देन 2, कोई x का भी फैक्टर हो सकता था या समथिंग. एक सबसे बड़ी गलती जो होती है यहाँ पर, वो गलती ये होती है कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. पहली बात तो ये एकदम भूल जाना है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना. गो विद द बेसिक, राइट? 1 को मैंने ट्रांसफर किया, माइनस 1 हुआ 3 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, ये 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 लेस देन 0, राइट? 2 एंड 5 के बीच की वैल्यूज है या बाहर की वैल्यूज है, ये देखने के लिए सबसे पहले मैंने पुट कर दिया यहाँ पर कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 5. अगर ग्रेटर देन 5 में वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो दिस इज कमिंग एज नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव. व्हाट वी रिक्वायर द नेगेटिव पार्ट. तो लाइक जैसे सॉल्व होता था वैसे, बट मेन थीम ऑफ दीज क्वेश्चंस आर दिस, राइट? करना क्या है, तो सिंपली करना ये है कि मुझे 1 को ट्रांसफर करते हुए इसे सॉल्व करना है. ये सॉल्व होने के बाद फिर जैसे सॉल्व होता था, जैसे आपने अभी तक किया है, वही सॉल्व करने हैं, बट कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमेशा गलत होगा. तो यू हैव टू बी वेरी 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 कॉशियस एंड केयरफुल. यू हैव नॉट टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस. ओके टू ऑल? देन प्लीज गो अहेड, राइट? नोट डाउन एंड गो फॉर द सेकंड वन. सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे.
Very good. Very good. See. So now transfer, you are getting 2x minus 3 upon x minus 1. Right? Minus infinity to 1 and 3 by 2 close to infinity. कुछ कैलकुलेशन कुछ लोग टेक्स हैं बट बहुत लोगों के सही है आंसर, राइट? सो careful on this, right? Right, 2 more for you. Do it fast. And this time no garbar please. No garbar please. Little bit calculation part, not a big deal, right? So should we proceed? मेरे ख्याल से काफी लोगों के हो गए, right? See the first one. Just 6 transfer there, right? We have to transfer the 6
So 4x plus 3 upon 2x minus 5 minus 6 less than 0, right? Minus 6 less than 0, right? Minus 6 less than 0. So you are getting with minus 6, you are getting this complete less than 0. So 33 by 8. If you want to change this, you can change this, or you can start from this only. Both way you will get the same answer, right? आंसर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आंसर सेम के सेम होने चाहिए, right? So this, and the second one, ये little bit इसके कैलकुलेशन सिंपल होंगे. 1 को ट्रांसफर करने पर this 4 will be common out from this. You are getting ये एक अपने आप में हमारे पास ये तरीका रहा कि अगर मेरे को सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को, राइट, तो हम लोगों के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं क्यूबिक या क्वाड्रेटिक के लिए, राइट? सो आई गेस नाउ यू कैन डू दिस इन इजी वे, राइट? सो जल्दी से इसे नोट कर लें, एंड मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, तो होपफुली यू नो दिस. तो आप लोग केवल क्वेश्चन नोट करके रख लें, या फिर मैं आपको अलग से भेज दूंगा, तो यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, राइट? दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन बाद में देखना. और दिस क्वेश्चन यू कैन क्लिक दिस क्वेश्चन. अगर आप चाहें क्वेश्चन को आप क्लिक कर सकते हो. वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 10 क्वेश्चन, राइट? 7 8 9 10. इसमें जो क्वेश्चन मेरे को अभी चाहिए सॉल्व किए हुए, वो क्वेश्चन नंबर है 5th 8th 9th. 5th 8th and 9th. Only 3 questions. I'm giving you 7 minutes for 3 questions. And और सब क्वेश्चन नोट करके रख लें, आपके होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस. हाँ, so ये 3 क्वेश्चन 5th 8th and 9th. Do it fast.
Very good, Amog. Fifth question is x plus 1 upon x minus 1 the whole square less than 1. Parikshit, eighth question is x square plus 6x minus 7 minus 2x square minus 2. Whole thing divided by x square plus 1. Ninth is x to the power 4 plus x square plus 1 upon x square minus 4x minus 5.
Oh, done everyone? How many of you got the right answer, please? How many of you got the right answer? Very good, very good, very good. Now, I can say that this is correct now and you are able to solve this type. Take a photograph of this. ना मैं नहीं चाहूँगा कि और मैं अभी प्रैक्टिस करूँ, थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, नए कुछ और इसमें मैं पढ़ाना चाहता हूँ. So just take a photograph of this. Done. Done? Wait, sir. Screenshot ले लेना. It's okay. Now otherwise I'm sending, right? But solution भी है, so I like कि without solution you have to go first. ना when you'll be able to do that, then you can go with the solution also, right? Now, new terminology, right? What we have to understand, and this is very, very, very important. So very careful in this, right? Okay, new terminology is and. What is the meaning of and? Mathematics में meaning of and is intersection, right? ये intersection क्या होता है? Like अगर मैंने दो circles लेके रखे हुए हैं like A and B, right? As you can see here, right? And मैंने दोनों को एक साथ में merge किया, right? This A and B दोनों को merge किया, तो ये yellow वाला part जो हमारे पास आ रहा है ना, ये yellow part, ये जो येलो पार्ट मेरे पास आ रहा है दोनों के मिक्सचर में, ये वाली चीज ये जो आ रही है, दिस इज कॉल्ड एंड. मतलब अगर मैंने ए भी लिया, मेरे पास ए नंबर में कुछ आ रहे हैं, ए के नंबर कुछ आ रहे हैं, बी के नंबर कुछ आ रहे हैं, एंड दोनों को इंटरसेक्शन जब मैंने लिया तो वी आर गेटिंग दिस पार्ट जो कि ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी को लिखने का तरीका ये होता है, ये जो साइन होती है ना, उल्टा यू मैंने जो बनाया, रिवर्स ऑफ यू, दैट्स कॉल्ड इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी. एंड द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन इज द कॉमन पोर्शन. इफ ए satisfying the number 1 2 3 4 5 6 7, right, and B satisfying the number 5 6 9 10 11, right? So A is this one, B is this one, so A intersection B will be 5 and 6 only, right? दोनों का जो common portion होगा, that's called A intersection B, right? This is called the intersection part, right? दोनों के जो common portion होते हैं, common part होते हैं, that you have to do, right? So and means both, मतलब दोनों चीजें, like burger and coke, both. I need both, दोनों मेरे को चाहिए, burger as well as coke. This is called we need both, दोनों एक साथ में you have to carry, right? Number line में क्या है? See, in number line mathematics में it's little bit different. That's the reason I'm getting into that, right? X greater than 2 and x less than 6. मैंने एक स्टेटमेंट ये दिया कि x must be greater than 2 and x must be less than 6. नंबर लाइन मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं x greater than 2. ये मैंने 2 नंबर रखा और 2 के आगे के नंबर्स में ले रहा हूँ. ये मैंने 6 रखा और 6 के नीचे के पूरे नंबर्स मैंने लिख दिए, राइट? मुझे क्या चाहिए? greater than 2, less than 6 and common to both. कॉमन टू बोथ की जब बात होगी तो मैं बोलूंगा बिटवीन 2 and 6. ये मेरे पास आंसर देगा 2 to 6 आंसर. A and B, right? A and B, and means common to both, right? Everyone.
So in the how we can use this, right? मैंने ये 4 ऑप्शन आपके पास रख दिए हैं, 4 साइन स्केल मैंने रख दिए हैं आपके पास, A B C D। आपको इंटरसेक्शन किसके किसके निकालने हैं? मैं फर्स्ट क्वेश्चन A इंटरसेक्शन B, सेकंड क्वेश्चन B इंटरसेक्शन C, थर्ड क्वेश्चन A इंटरसेक्शन D, राइट? फोर्थ क्वेश्चन A intersection C, fifth question B intersection D, sixth question C intersection D, right? Do it fast। ये 6 को आप मार्क करो, मार्क करने के बाद देखो कौन से दोनों के कॉमन पोर्शन आते हैं। डू इट फास्ट, उसके बाद मैं करता हूँ। You have to understand, it's a very good theory. You have to understand. Anushka. Now it's writing less than 14 means less than 14. It's not less than 14 means 14, 13. Less than 14 means each and every number between these numbers, right? Haripriya? एक बार बड़ा करो ना, बहुत छोटा हो गया। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, पूरा ब्लैक दिख रहा है। हाँ सर, ओके। Look at that again. Something wrong? You can see there? No sir. Done? Yes sir. Okay. So this is a simple thing, but एक बात तो जाननी है हम लोगों को कि क्या हो रहे हैं उसके लिए। हरिप्रिया, are you there? हरिप्रिया, हाँ दिख रहा है? हाँ okay? सर। Now A intersection B, A is saying right, ये वर्किंग मैं ऐसा ही रखता हूँ। ये जो अभी आप स्टडी कर रहे हो, ये अभी से लेके 12th तक, 12th के बाद आईटी एग्जाम तक, दिस विल बी इम्पोर्टेंट। ये वहां तक आपको यूज करने हैं। सो यू हैव टू बी वेरी 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 श्योर व्हाट यू आर डूइंग एंड यू आर गेटिंग आंसर करेक्टली ना। सी फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? x greater than 2 open to, right? You can mark like this. In the same number line with B, I'm saying ki anywhere there's 14. So there is 14, right? In the same number line, this is less than 14. It's going minus infinity to 14. So in both the way, I have to write 2 to 14. 2 is closed, 14 open, right? 2 is closed and 14 open, right? 2 closed क्यों आएगा? क्योंकि 2 y closed. Open है क्या? Yes. Sorry, my side. Okay. It's both open. Open ही लिखा हुआ है, right? This is open, right?
Second is B and C, right? B and C, x greater than equal to -3, right? This time closed, right? And B less than 14, open 14, right? दोनों को मैं मर्ज करूं तो this is the portion coming as this time -30, -3 to 14, right? The second one, right? Third, this is A intersection D, x greater than 2, right? यहीं पर करता हूं मैं, x greater than 2. A third is A, x greater than 2, this portion, and D is x less than equal to 2, right? Right. So one side I'm saying x greater than 2, and second side I'm saying x less than 2. What is the common portion in between? ये दोनों के बीच में कौन सा कॉमन पोर्शन है जिसके लिए वी कैन वर्क, राइट? ध्यान से देखो, what is the common portion? First case you are saying x greater than 2, right? And second case you are saying x less than equal to 2. What is common in both the portion? दोनों में पोर्शन में कॉमन क्या है? चिन्मय 2, अनुष्का नो कॉमन एलिमेंट, ये दो लोगों के दो आंसर्स आ रहे हैं. इट शुड बी नल सेट. आदित्य 2. Why 2? मानस 3 नंबर. मानस अनम्यूट करो अपने आप को. व्हाट इज दिस 3 नंबर बेटा? Snikta, are you there? Yes, sir. You are saying 2. Could you prove this? Where is this 2 common to both? दोनों में 2 कैसे कॉमन आ रहा है? नहीं सर, वो गलती से लिख दिया. 2 कॉमन नहीं आएगा. 2 कॉमन नहीं, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है. नो नंबर इज कॉमन. तो ये एक ऐसा पोर्शन था मेरे पास जिसमें साफ मेरे को आंसर दिख रहा है. यहाँ आंसर होगा 5 या नल सेट. 5 या नल सेट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, राइट? ये ध्यान देना, बहुत सारे ऐसे आंसर्स भी आएंगे कि कॉमन मैथमेटिक्स ही एक ऐसा पोर्शन होता है. मैथमेटिक्स एक ऐसा जगह होता है जिसमें नो सॉल्यूशन इज आल्सो अ सॉल्यूशन. इन दिस क्वेश्चन यू आर गेटिंग नो सॉल्यूशन एंड दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन, राइट? तो नो सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन फॉर अ क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स, राइट? सो कभी कभी नो सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन दे जाता है, राइट? A intersection C, right? A intersection C. From A you are getting greater than 2, right? C you are getting x greater than equal to -3. -3 greater than equal to -3, right? दोनों में कॉमन पोर्शन मेरे को चाहिए. याद रखना ये ओपन है, ये क्लोज्ड है. दोनों में कॉमन पोर्शन मेरे पास आ रहे हैं 2 to infinity, 2 ओपन, राइट? B and D. B को मैंने कहा लेस देन 14, राइट? D को मैंने कहा लेस देन इक्वल्स टू 2, राइट? लेस देन इक्वल टू 2. -infinity to 2 closed. C intersection D. I guess clear to everyone? C intersection D, right? C and D अगर मैं दोनों को mix करूं तो from this I'm getting x greater than equal to -3,
राइट, एंड x लेस देन इक्वल टू 2, राइट। दोनों के कॉमन पोर्शन -3 to 2, तो जितने वेरिएशन थे करीब करीब सभी के सभी आपके पास आ, राइट। तो ऑल 6 करेक्ट। कितने लोगों का है जरा देखूं। अरे वाह मन, वेरी गुड। अनिस वेरी गुड, अनुष्का वेरी गुड, चिन्मय 5, वेरी गुड। आयुष, ये कौन है भाई बिना नाम का? हितांश, हितांशु, योर नेम इज हितांशु ना? No, sir, it is Hitansh. हितांश ना, क्या स्टाइल में नाम लिखा है भाई, वेरी गुड। Thank you, sir. ये थैंक यू सटारिकल भी नहीं समझ रहा अरे फिर यार, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे। हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट गेटिंग दिस, या लाइक 5 से नीचे जिनके करेक्ट हुए हों? कोई पूछना चाहोगे कुछ? यू वांट टू आस्क एनीथिंग? अगर नहीं तो मैं आगे बढ़ूं, अगर हाँ तो जल्दी से आस्क प्लीज। Anyone? I'm waiting. Hope everyone is getting this now. तो अब ये जो क्वेश्चंस हमारे पास आए जिसमें हमने एंड के बारे में बात की, राइट। अब इस एंड के बारे में जो हम लोगों ने बात की उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, राइट। एंड से आगे क्या, तो ABCD जो हमारे पास 4 नंबर थे उस पर वी हैव सीन कि लाइक सेकंड हमारे पास है और, OR, और का मतलब क्या होता है? तो ऑब्वियसली यूनियन, राइट। जितने भी जो भी चीजें आ रही हैं सब, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू टेक, दैट्स कॉल्ड द यूनियन, राइट। यूनियन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, राइट। In this case, if A is coming from there and B is coming from there, read all the portion. All the portion मतलब ये भी satisfy हो रहा हो, ये भी satisfy हो रहा हो। लाइक A अगर मैंने कहा 1 2 3 4 5, राइट। B मैंने कहा 3 4 7 9, राइट। U यूनियन, U से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब होगा 1 2 3 4 5 7 9। ईच एंड एवरी एलिमेंट, जो A में आया वो भी, जो B में आया वो भी, जो कॉमन आया वो भी, जितने भी चीज आ रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू, राइट। हर एक चीज को आपको ऐड करते जाने हैं, इधर दिस और दिस ना, दोनों पोर्शन जो होंगे आपके ऑलवेज सेटिस्फाइड वाली बात है कि हमेशा आप सेटिस्फाइड रहोगे। जैसे आप लास्ट केस में आपने थोड़ी सी गड़बड़ की थी, आपने बोला था बर्गर एंड कोक दोनों चाहिए, लेकिन दिस केस में बर्गर एंड कोक नहीं, और कोक चाहिए। देखता हूं बाद में क्या। नंबर लाइन, अब नंबर लाइन में मैं बात करूं तो x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 6, x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 6, तो ये x ग्रेटर देन 2 को रिप्रेजेंट किया, ये x लेस देन 6 को रिप्रेजेंट किया, राइट। अब दोनों में कॉमन पोर्शन की बात करूं तो मैं बोलूं कि मैंने -∞ से +∞ सबको रिप्रेजेंट किया, कि उसमें फर्स्ट वाले में 2 से इन्फिनिटी तक मेरे पास आ रहा है, सेकंड में -∞ से 6 तक आ रहा है, दोनों के बीच का कॉमन पोर्शन 2 to 6 है, तो इससे -∞ to 2 गया, इन दोनों से कॉमन 2 to 6 गया, इन दोनों से नॉट कॉमन 6 से इन्फिनिटी गया। मतलब जितने नंबर थे सबके सब आ गए, तो कॉमन इज -∞ to 2। जितने पोर्शन होंगे वो ईच एंड एवरी पोर्शन यू हैव टू टेक, राइट। यहीं पर हम लोगों को यू यूनियन की जरूरत पड़ती है। इज इट ओके एवरीवन? क्लियर है ये? Yes, sir. राइट नाउ, Yes. सो राइट means or, either or, राइट। बर्गर में भी सेटिस्फाइड, कोक में भी सेटिस्फाइड, राइट। ये वाला भी है एंड ये वाला भी, दोनों आंसर में आपके पास आ रहे हैं, राइट। सो यूज कैसे करने हैं, ये वाली फिर से बात आ गई आपके पास, राइट। हमने 6 क्वेश्चन अभी तुरंत आपको दिए थे। फिर से फर्स्ट A
union B, second A union C, third A union D, fourth B union C, fifth B union D, sixth D union C. राइट, ये 6 क्वेश्चन आपके पास. डू इट फास्ट. सर फोर्थ वाला बी यूनियन सी है ना? 6 केस होंगे ना. अगर 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, उनके दो दो के कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो 6 केस होंगे. अगर ध्यान से देखो तो वो 6 के 6 पूरे केस है. इसे बोलते हैं 4C2. राइट, ABCD मार्क है आपके पास. एकदम ध्यान से समझते हुए करना है. वेरी गुड अमोक, वेरी गुड. सर स्क्रीन चला गया. यस सर. बहुत छोटा. चला नहीं गया बेटा. बहुत छोटा. छोटा. ओके, देख पा रहे हो? यस सर. सब कर लो, देन विल डिस्कस. गुड. डन. यस सर. वेरी गुड, वेरी गुड. वेरी गुड यार, आप तो सही बात. अच्छा सॉल्व कर लेते हो क्वेश्चन. वेरी गुड. लास्ट वन, लास्ट वन, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट. उससे ऊपर टाइम लेना नहीं चाहिए. वेरी गुड. ओके, स्टार्ट ना.
start with first one, right? It's given that x greater than 2, right? And b is x less than 14. कौन सा पोर्शन? जहां जहां भी ये लाइंस आ रहे हैं, ईच एंड एवरी पोर्शन, अगर आप चाहो तो मार्क इट डाउन। ये मार्क करना शुरू किया, राइट? टू इस पे नहीं आ रहा है बट ये वाले पे आ गया, इसलिए मार्क हो जाएगा, राइट? 14 इस पे नहीं आ रहा है बट ये वाले पे आ गया, इसलिए वो भी मार्क हो जाएगा। मीन्स आर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कंप्लीट रियल नंबर। इज इट ओके? फर्स्ट क्वेश्चन, A union B. Very good. Second question. अब second में it's given A union C. यूनियन एंड इंटरसेक्शन समझना है आपको, राइट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाद में ये समझना है कि क्वेश्चन में वेयर इट इज गिवन, कब यूनियन गिवन है, कब इंटरसेक्शन गिवन है। A union C, right? A is greater than 2, C is greater than equal to -3, right? दोनों में कॉमन पोर्शन greater than equal to -3, -3 से स्टार्ट होके आई एम गोइंग टू इन्फिनिटी, -3 to infinity, क्लोज्ड ओपन। जो भी पोर्शन, जितना भी पोर्शन आ रहा है, हर जगह यू हैव टू ऐड, राइट? अपने आप में वो वर्क करना है एंड बड़े आराम से ये ऐड हो जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यू विल गेट फॉर दोनों तरफ के आते हैं क्वेश्चन, बट ठीक है। A union D, right? A union D, A is greater than 2 and this is less than, फिर से ये R चला गया, इस बार सब के सब नंबर एक साथ आ गए। बड़ा अच्छा मैच किया, जहां पर जो नहीं था परफेक्टली मैच, राइट? Fourth, B union C. B is less than 14. Union C is greater than equal to -3. Right? Obviously, complete portion again coming. Right? This is question number 4th. Right? Fifth देखता हूँ. Fifth question. B union D. B is less than 14 only and D is less than equal to 2, right? दोनों को मर्ज किया, -infinity to 14, right? Fifth one and the sixth one is D union C. D is x less than equal to 2 and C is x greater than equal to -3. It's including again all the 6 answers. इसमें से मेरे ख्याल से 4 आपके पास -infinity to +infinity आ रहे होंगे and 2 में आपने आंसर डिफरेंट जो भी आए वो आपने मार्क किया होगा। तो how many of you got all 6 correct? हाँ, वेरी गुड। तो अब क्वेश्चन कैसा रहेगा, राइट? क्वेश्चन 2 तरीके से यूजुअली आपको पूछे जाएंगे, ठीक है? इट्स ओके, वेरी गुड। मेरे ख्याल से सभी का सही है पूरा। तो 2 तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट वे होता है इन क्वेश्चन को देने का, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 स्क्वायर कर देता हूँ एंड x स्क्वायर एंड, अगर नहीं भी लिखा हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके बीच में ये एंड ना, ये मेरे को कर्ली ब्रैकेट के साथ ये दोनों दे दिया, मतलब है दिस एंड दिस, अगर नहीं भी गिवन है तो। एक दूसरा तरीका होता है x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, राइट? ये सेकंड वे इसी चीज को लिखने का हो सकता है कुछ ऐसा, राइट?
या तो आपको इस तरीके से लिखा हुआ हो, मतलब आपको रिजॉल्व करके दे दिया, अगर रिजॉल्व करके नहीं दिया है तो ये ऐसा रिटर्न रहेगा। मतलब ये समझना है कि वन टाइम यू हैव टू सॉल्व दिस वन, अदर टाइम यू हैव टू सॉल्व दिस वन, राइट। तो एक बार ये सॉल्व कर रहा हूँ तो ये लिखा हुआ है, एक बार राइट वन सॉल्व कर रहा हूँ तो ये लिखा हुआ है, मतलब दोनों तरफ से यू हैव टू सॉल्व, राइट। सो इन बोथ वे यू विल गेट द क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा उसे देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट यू आर गेटिंग, x स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 9 तो x प्लस 3 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेक अ नंबर लाइन, ध्यान से, माइनस 3 प्लस 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वी नो दैट दिस इज पॉजिटिव पोर्शन, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज रिक्वायर्ड पोर्शन। जो मुझे रिक्वायर्ड पोर्शन है वो 3 के आगे है एंड माइनस 3 के पीछे है, दोनों क्लोज्ड है तो मैंने दोनों को क्लोज रखा, राइट। सेकंड मेरे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर, इस तरीके, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन बाद में सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू -1 to +1, राइट। -1 to +1 के बीच में होगा। अगर इसे आप अलग से पहले प्लॉट कर लो देन इस पे आ रहे हो, मैं अलग से ही प्लॉट कर लूँ पहले, -1 to 1, ये उसके बीच का सॉल्यूशन ये दे रहा होगा, कुछ अलग सा मार्क कर देता हूँ। अब दोनों को मर्ज करता हूँ, तब दोनों को मर्ज करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये -3 to +3, इसको मार्क करता हूँ रेड से, राइट। ये -1 से +1, इसको मार्क करता हूँ येलो से। अब ये मेरे को देखना है कि कौन सा पोर्शन ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। अगर जो मेरे पास पोर्शन आ रहा है दोनों में कॉमन है वही मेरा आंसर होना चाहिए। तो क्या कोई पोर्शन है जो दोनों में कॉमन है? नहीं, तो इसका आंसर हुआ 5। लेकिन दूसरा क्वेश्चन मैंने एक और इसी समय क्वेश्चन लिखा था, उस समय क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 9। ध्यान से देखना, इसे भी वैसे ही सॉल्व करूंगा बट 1 by 1। कैसे? पहले इसे सॉल्व करता हूँ फिर इसे सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट, वी नो दैट। नंबर लाइन मैंने बनाया, थोड़ा सा फास्ट में कर सकता हूँ। x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो -1 एंड +1 और इसके बाहर राइट। सेकेंडली एक्स स्क्वायर -9 लेस देन इक्वल टू 0, अभी तुरंत भी मैंने सॉल्व किया था। -3 + 3 एंड उसके अंदर लेस देन में उसके अंदर दोनों को मर्ज करता हूँ। मर्ज करना बड़ा मजा आता है, देखो कैसे, -1 + 1, राइट। इसको रेड से ही मैंने मार्क कर दिया। दूसरा नंबर था मेरे पास -3 + 3, उसके अंदर को मैंने मार्क कर दिया। कौन सा ऐसा पोर्शन है जो दोनों में कॉमन है? उसके पहले क्लोज और ओपन देख लूं, सब में क्लोज है। तो अच्छी बात ये है कि you'll get this close, this close, this close, this close, ये सब क्लोज है। -3 से -1 यूनियन 1 से 3, दिस इज द आंसर। x बिलोंग्स टू, इसे रीड करते हैं, बिलोंग्स टू। Is it okay, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं एक क्वेश्चन देना चाहूंगा। मैं लास्ट पेज पे जाऊं प्लीज, एक बार इसे नोट कर लेना सभी लोग, या आपको जैसे कंफर्टेबल हो। राइट, आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पेज ओनली। बहुत है, बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ी रहती है, थोड़ी कंफ्यूजन होती है, बट अगर रिजॉल्व करके धीरे धीरे स्टडी करोगे ना, ये सब सिंपल है। वैसे भी मैथमेटिक्स थोड़ी सिंपल चीज। सर एक मिनट, एंड मतलब यूनियन या इंटरसेक्शन? एंड मतलब यूनियन या इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन। ओके सर। और का मतलब यूनियन। देखो ना, मैंने उसमें अच्छा सा पीपीटी भी बनाया था पूरा। बर्गर एंड कोक, बर्गर और कोक, याद आया? Yes. ये पोर्शन जैसे ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसा लिखा हुआ है, मतलब इसका है
and x greater than equal to 1 and x less than equal to 9, इसलिए मैं दोनों का कॉमन पोर्शन लेता हूं, राइट? डन. Yes. So one question for you. Do it. X square greater than equal to 4 less than equal to 25. Very good. So in this case, what you have to see, like x square minus 4 greater than equal to 0 and x square minus 25 less than equal to 0. From first one, I'm going to directly, right? First one, I'm getting -2 and +2, right? के बाहर ना greater than है तो बाहर, and from for the second this thing -5 and +5 के अंदर, and both having the equality sign, so this must be carried out with closed brackets, right? So -5 to -2 union 2 to सर 5. लिख रहे हो दिखाई नहीं दे रहा, सब प्रिंट Yes, हो रहा है स्क्रीन पे। ऐसे लिंक नहीं हो रहा। It's okay. हाँ, कोई नहीं, एक जन बोला उसी पे आवाज आ गई, वो कुछ गड़बड़ रहते हैं सिस्टम के, right? I guess everyone is getting this. Yes sir. -5 to -2 and 2 to 5. Not necessarily always will get something like this, ki greater than equal to n. It may be possible you'll get this from two different number system, right? And then you have to solve this, like if I'm saying x minus 1, x minus 2, x minus 4 less than 0 and x square less than equal to 1, right? Solve these two. Your chance. One, 2, and 4, right? And here x square minus 1. Right? For this one, 1, 2, 4. Anything positive, negative, positive, negative. What we require less than 0. So this is open, this is open, this is open. Minus infinity to 1, union 2 to 4. Right? And x square minus 1. अगर मैं इसी पे मार्क करना चाहूँ with yellow, right? -1 to 1
राइट, इन बिटवीन आएगा क्योंकि लेस देन। एंड व्हाट इज कॉमन इन बोथ दिस, राइट, दोनों की कॉमन पोर्शन मेरे को देखने हैं। इज कमिंग एज -1 to 1, 1 पर दिस वाज ओपन बट -1 पर दिस इज क्लोज। ये बड़ा डेलिकेट सा जगह हो जाता है। -1 to 1, 1 is open, -1 is closed। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा एग्जैक्टली -1 और 1 के बीच में क्यों क्लोज एंड क्यों ओपन। ओके ओके एवरीवन, राइट। ये पूरी पिक्चर थी एंड और की। एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं बताना चाहूंगा। कोई भी मेरे पास नंबर दिया है x-1 पावर 1/2n, एक ये स्टेटमेंट x-1 x+1 1/2n + 1। इन दो में हमारी नंबर सिस्टम थोड़े से अलग अलग बिहेव करती है। अगर n इंटीजर है, ऑब्वियस सी बात है कि 1/, कोई भी इवन नंबर है, 1/, ये कोई भी इवन नंबर है, तो हम लोगों को डोमेन निकालने के लिए, मतलब x की वैल्यू कहाँ पर सेटिस्फाई करेगी, उसके लिए हम लोग ये बोलते हैं जो भी फंक्शन अंदर दिया हुआ है वो > 0 होना चाहिए। लेकिन अगर ये ऑड नंबर दिया हुआ है 1/, तो इसके लिए हम बोलते हैं हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मतलब क्या है ये समझना। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस जो मेरे पास दिया हुआ है उसमें मान लो मेरे पास नंबर है -1/4, इसका पावर 1/2, इसका पावर 1/4, इसका पावर 1/6। कोई भी ऐसा नंबर मेरे पास है 1/16, कोई भी ऐसा नंबर मैं कर रहा हूं तो 100% ये बोला जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, रियल वैल्यूज इसकी नहीं होती है, इमेजिनरी वैल्यू होती है जो हमें अलग से स्टडी करना पड़ेगा, राइट। लेकिन सेकंड केस में अगर मैं -8⁻⁴ कर रहा हूं या कोई भी इस तरह का नंबर कर रहा हूं तो ये -2 नंबर डिफाइंड होगा, राइट। क्योंकि -1 एनी ऑड थिंग विल बी -1 ओनली। -1 का पावर मैं 1/2019 भी करूं तो भी वही आ रहा, लेकिन 1/2020 कर दूं तो वो इमेजिनरी होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो साफ बात है, अगर कभी भी मेरे पास पावर इस फॉर्म में दिया हुआ होगा, राइट, इस फॉर्म का पावर जब भी मेरे पास रहेगा, सिंपली मेरे को क्या करना है, सिंपल बोलना ये है, ये नॉट डिफाइंड के लिए अंदर का फंक्शन को पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज नेगेटिव होगा। अगर 0 हो जाए तब भी चलेगा, या पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज वो नॉट डिफाइंड कहलाएगा। इसको नाम जो बोला जाता है ये कहलाता है डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये काफी डिटेल में आगे भी पढ़ना है, बट फिर भी मेरे को लगा एक बार बता देने का कि क्वेश्चन को करते वक्त आपको यूज हो जाए। ओके एवरीवन, नोट डाउन प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, done. डन एवरीवन। नेक्स्ट पेज में मैं दे दूं, अगर देख लो, ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ ऐसा फिर भी देख लो। एंड ये जरूरी नहीं कि केवल 2 ही रहेंगे, हो सकता है 3, 4, 5 फंक्शन को एक साथ में आपको दे दिया जाए और वहां पर आपको देखना हो >0 <0 कहाँ पर आने हैं, राइट। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, राइट। and राइट, टेक योर टाइम। मैंने 3 दिया, हो सकता है मैं 4 दे दूं, हो सकता है 5 दे दूं, जितना भी चाहूं उतना दिया जा सकता है। इतनी बड़ी बात, मतलब यू आर एबल टू सॉल्व दिस।
डन। Sir, 1 minute. स्टार्ट, शुरू करें। Yes, sir. राइट, फर्स्ट वन की बात करूं अगर, दिस इज x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, माइनस आ जाता है यहाँ पर, -2 लेस देन 0, राइट। और अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0, राइट। ये x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 6 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, 3x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये आ गया। इसे निकाला x स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स लेस देन 0, इसे निकाला x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, राइट। ये अलग अलग पहले सबको सॉल्व कर लिया, राइट। मर्ज करने के पहले अलग अलग बातें करता हूँ। चलो पहले इसे सॉल्व करूंगा। 0 माइनस 4 प्लस 4, ये लेस देन 0 चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब थोड़ा सा मैं थोड़ा एडवांटेज ले रहा हूँ, राइट। मैं डायरेक्टली इसे कर रहा हूँ, आप लोग अलग अलग से आराम से कर लेना। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे नेगेटिव चाहिए तो ये पोर्शन एंड ये पोर्शन आया फर्स्ट के कारण या येलो के कारण, रेड। इसे रेड मार्क करता हूँ। -2 से +2, यहाँ कहीं -2 होगा, यहाँ कहीं +2 होगा, राइट। इसके बीच के पोर्शन को मैंने रेड से कर दिया। इसमें ध्यान दो, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, राइट। इसको मैं क्या कलर रख लूँ, ग्रीन रख लेता हूँ, राइट। 1 and 3, 1 कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, 3 कहीं यहाँ पर आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 है। कौन सा ऐसा पोर्शन दिख रहा है जिसमें रेड ग्रीन एंड येलो तीनों आ रहे हैं? क्या कोई ऐसा पोर्शन है जिसमें येलो ग्रीन एंड रेड अगर तीनों आ रहा हो तो वही 0 to 1. 0 to 1. क्या कोई पोर्शन है ऐसा? कैन यू सी दैट पोर्शन? 0 to 1. यस यस, 0 to 1. वेरी गुड। क्लोज ओपन का ख्याल रखना, बहुत सारे क्लोज और ओपन वाले केसेस हैं, यहाँ पर केवल एक ही क्लोज का केस जा रहा था, सॉरी, एक ही केस जा रहा था, -2 एंड +2, और दोनों हमारे ओपन है, तो एवरीथिंग विल बी ओपन, मुझे उसमें कोई दिक्कत है नहीं, राइट। बड़े आराम से काम करने की जरूरत है, लेकिन ये पेशेंस और इतने फैक्टर को एक बार में सोचना, यही जरूरत होती है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, आईटी जैसा एग्जाम होता है, उसके लिए। तो मैं इतने पूरे करवाने के बाद जरूर आपको बोल सकता हूँ, वेलकम टू आईटी जेई,
राइट। IIT JEE के लिए मैं वेलकम यहाँ जरूर आपको कर सकता हूँ। राइट। सो होमवर्क सुन लें अब जरा सा। जो पहले मैंने आपको दिया हुआ था ये शीट पर कुछ क्वेश्चन कम रहे थे जिसको आप लोगों ने कंप्लीट अभी नहीं किया होगा। 869 तक मैंने डिस्कस भी नहीं किया। डिस्कस नहीं करने का रीजन आप समझ गए होंगे, राइट? क्योंकि वो पूरी की पूरी थ्योरी मेरे को आज बतानी थी उसमें, तो होपफुली यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस ना, 100% हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के।